Sorry. Sorry. Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start my lecture series with VHDL and digital system design, and these series also helpful for both ETC, CSC, and plus electrical 6 semester student. That is a programming based lecture which are based upon your VHDL. That is my lecture number 1 and unit 1, in which we cover the topic that is history about VHDL, use of VHDL, design cycle, hardware design construction, and hardware simulation and synthesis. So today start with your VHDL. What do you mean by VHDL? VHDL is acronym for VHSIC, hardware description language, very for designing a very high speed integrated circuit. It is a hardware description language that can be used to model a digital system at many level of abstraction, ranging from algorithm level to gate level. The complexity of the digital system being modeled could vary from that of a simple gate to complete digital electronic system or anything in between. The digital system can also be described hierarchically. Timing can also be explicitly modeled in your same description. So VHDL language that should be designed for, you can say, designing for high integrated chip with the help of three of the molding style which you can use in your VHDL programming. So that programming molding style is sequential language plus your concurrent language plus your netlist language and plus timing specification and waveform generation, that is equal to your VHDL. So that I give the detailed description about the VHDL, how the VHDL work, or you can say how the VHDL help for designing a digital circuit in very flexible manner. Therefore, so that language constructs that enable you to express the concurrent and sequential behavior of the digital system with or without timing. It also allows you to model system as an interconnection of component, test waveform, and can also be generated using the same constructs. All the above constructs may be combined to provide a comprehensive description of the system in a single model. The language not only defines the syntax but also defines very clear simulation semantics for each language constructor. Therefore, model written in the language can be verified using VHDL simulator. It is strongly typed language and is often verbose to write. It inherits many of the features, especially the sequential language part, from the ADA programming language. Because of VHDL provides an extensive range of molding capabilities. It is often difficult to understand. Fortunately, it is possible to quickly assimilate a core subset of the language that is both easy and simple to understand without learning the more complex feature. These subset is usually sufficient to model most application. The complete language, however, has sufficient power to capture the descriptions of the most complex chips to a complete electronic system. मीन्स मैं आपको बड़े इजीली वे से बताती हूँ कि व्हाट डू मीन बाय VHDL. VHDL is a hardware description language which can design a logic circuit from your algorithmic level to गेट लेवल. तो VHDL लैंग्वेज को स्टडी करने से पहले हम इसके अंदर कुछ मोल्डिंग स्टाइल ऑफर करते हैं. तो वो मोल्डिंग स्टाइल मेनली है क्या, उनके पैरामीटर अलग अलग हैं लेकिन उनका जो एंटिटी पार्ट है वो सेम है. तो किसी भी मॉडल को डिजाइन करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि आपने उस पर्टिकुलर मॉडल को किस मोल्डिंग स्टाइल से डिजाइन करना है. तो सपोज करो कि अगर आपने किसी भी मोल्डिंग स्टाइल से डिजाइन करना हो,
तो वो आप पे डिपेंड करता है हाउ द क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम, एंड आल्सो यू डू द एक्सपेरिमेंट सेम इन योर लैब। तो इसको स्टडी करने से पहले आपको कुछ सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसको बनाने के लिए या फिर हार्डवेयर की डिजाइनिंग के लिए हम एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसके अंदर हम कुछ मोल्डिंग स्टाइल्स को फॉलो करते हुए उसके अंदर प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं और फिर सिमुलेशन में जाके रन करते हैं। तो इसके अंदर दो टूल जो होते हैं आपके मेन होते हैं, दैट इज वन ऑफ इज कॉल्ड योर सिमुलेशन टूल एंड अदर वन इज कॉल्ड योर सिंथेसिस टूल। तो सिमुलेशन जो टूल होता है दैट शुड बी हेल्प फॉर जनरेशन ऑफ वेवफॉर्म, एंड सिंथेसिस टूल टू हेल्प फॉर जनरेटिंग योर सर्किट diagram. So these two tool for helpful for any circuit generation plus your waveform generation. After you getting the waveform, after running the programs you getting a waveform, and that waveform should be analyzed with the help of your truth table. If the result will be okay, your circuit will be okay, and that is ready to implement on an PLA or PAL, or you can say CPLD chip. तो बेसिकली VHDL का जो आइडिया आया था वो कहाँ से आया था? तो हमने अभी तक की स्टडी में क्या बताया, मैंने आपको एक सिंपल कंसेप्ट स्टडी किया है कि VHDL एक लैंग्वेज है जो आपके डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। तो हम क्या करते हैं, सपोज करो कि आपने एक छोटा सा गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, तो उस गेट से रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा वो आप Xilinx के सॉफ्टवेयर के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, दैट शुड बी डिस्कस्ड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो, और यू कैन से लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आप क्या करेंगे कि उसके लिए उस प्रोग्राम को किसी भी मोल्डिंग सेल से लिखेंगे, देन आप उस प्रोग्राम को लिखने के बाद प्रॉपर फॉर्मेट में उसको रन करेंगे। रन करने पर उस Xilinx के सॉफ्टवेयर के अंदर दो टूल आपकी मेन हेल्प करते हैं, द वन इज कॉल्ड योर सिमुलेशन, अनदर वन इज कॉल्ड योर सिंथेसिस। तो सिमुलेशन टूल क्या करता है, वो आपका वेवफॉर्म को जनरेट करता है, एंड सिंथेसिस टूल उस एंड का सर्किट डायग्राम को क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, वो सर्किट जनरेशन एंड वेवफॉर्म will getting at the output, at that waveform will be analyzed with the help of truth table. If the result is okay, your circuit diagram will be okay, and that is ready to install, or you can say ready to burn that particular circuit on a PLA, that is stand for programmable logic array, or PAL, or you can say CPLD chip. तो हमने क्या किया, एक होली सोली आइडिया तैयार कर लिया कि आपका जो VHDL है वो किसी चीज को डिजाइन करने में कैसे आपकी हेल्प कर रहा है। तो VHDL का जो हिस्ट्री है वो क्या कह रही है आपको कि बेसिकली VHDL का आइडिया कहाँ से आया। तो सबसे पहले यूएस की कंपनी ने जो है वो अपनी VHSIC चिप का जो ऑर्डर दिया किसको, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को। एट द टाइम मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर यूजिंग डिफरेंट हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो उस टाइम में क्या था, जो डिफरेंट कंपनी थी वो अपने अपने हार्डवेयर यूज कर रही थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की चिप्स को डिजाइन करने के लिए, लेकिन एज ए रिजल्ट डिफरेंट वेंडर्स कुड नॉट इफेक्टिवली एक्सचेंज द डिजाइन विद वन अनदर। उससे क्या हुआ कि अगर हर एक कंपनी अपना डिजाइन खुद अलग फॉलो करेगी तो आप जो वेंडर हैं वो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते डिजाइन को। तो क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस के लिए क्या किया, ये 1983 के अंदर ये चीज कॉन्ट्रैक्ट IBM को दे दिया। तो IBM ने एक कॉमन सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड योर VHDL सॉफ्टवेयर बना के तैयार किया, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखकर एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई। थ्रू दैट कॉमन लैंग्वेज वी कैन डिजाइन अ सर्किट, एंड दैट सर्किट शुड बी एक्सचेंज अमंग वेरियस वेंडर इन योर मार्केट। तो इन 1985 के अंदर उसी VHDL लैंग्वेज का एक 7.2 वर्जन आया, जो कि आपका सिंपल जो IBM कंपनी ने एक VHDL बेस्ड जो आपका एक सॉफ्टवेयर बनाया था उसका एक एडवांस वर्जन था, जिसको आपने आपकी IEEE ने क्या दिया, अप्रूव किया, अप्रूवल दिया। 1987 के अंदर VHDL को बिल्कुल फुल्ली रूप से अप्रूव्ड हो गई बाय द यूज ऑफ IEEE STD 1076 इन 1980
7। और उसके बाद उससे बन के जो भी कंपोनेंट जो बन के डिजाइनिंग के बाद जो कंपोनेंट तैयार होते थे विद द हेल्प ऑफ वीएचडीएल लैंग्वेज डिजाइनिंग, उसको इंडस्ट्रियल में हम में हमने यूज करना शुरू किया। और फिर 1993 के अंदर एंड यू कैन से अप टू टिल नाउ इसके एडवांस वर्जन आते रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होती रही हैं, यानी कि इसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके मोर एक्यूरेट रिजल्ट यू कैन गेटिंग एट द आउटपुट। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी सर्किट डिजाइन करना हो, तो यानी कि सपोज करो कि आपने अब वो सॉफ्टवेयर तो बना लिया, उसके अंदर प्रोग्राम राइट कर दिया, तो प्रोग्राम रन करने के बाद उसने उस प्रोग्राम को रन किया, आपको वेवफॉर्म दी, सर्किट दिया, उस सर्किट को आपने इम्प्लीमेंट किया ऑन ए पीएलए पाल और यू कैन से सीपीएलडी चिप। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि उस सर्किट को बनाने के लिए आपका एक डिजाइन साइकिल फिनोमिना जो है वो आपके माइंड के अंदर सर्कुलेट होता है। तो उस डिजाइन साइकिल के थ्रू आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिजाइन करते हो, ये कैन से उस डिजिटल सर्किट को डिजाइन करते हो। तो सबसे पहले आप डिजाइन आइडिया लेके आते हो, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन मतलब उसकी पोर्ट्स को हम एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर है क्या, फिर उसको हम किसी मोल्डिंग स्टाइल से उसका कोड तैयार करेंगे। कोड तैयार करने के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसकी एनालिसिस चेक होगा वो सर्किट, वेदर दैट पर्टिकुलर सर्किट इज ओके और नॉट। अगर वो ओके है तो मैन्युफैक्चरर जो है उसको मार्केट में वेंडर्स के थ्रू क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। तो उसने क्या किया कि फॉर डिजाइनिंग अ सर्किट, फर्स्ट स्टेप क्या आपका, आपने आइडिया लिया। There must be some idea which we want to implement. So to start our design procedure, we must collect the specification required. Then by applying our knowledge to digital electronics by using K-map, we design a circuit on paper. Now after drawing a logic diagram of a circuit, we construct on breadboard or PCB using different IC. This step is constructing circuit is called your implementation of idea or design. जैसे आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की है, आप किसी चीज का कोई सर्किट बनाते हो, उसको के मैप के थ्रू डिजाइन करते हो। अगर के मैप से जो भी आपका बुलियन एक्सप्रेशन बन के तैयार होता है उसको आप ब्रेडबोर्ड या पीसी के ऊपर क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। तो वही सेम चीज हम विद द हेल्प ऑफ जाइलिंग सॉफ्टवेयर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ वी हैव, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सर्किट को एनालिसिस करोगे। अगर उसकी एनालिसिस करने पर उसका रिजल्ट ओके आता है तो क्या होगा, वो सर्किट आपका रेडी है फॉर वर्किंग के लिए। लेकिन अगर वो सर्किट नहीं रेडी है, यानी कि कहीं से लूज कनेक्शन रह गया ब्रेडबोर्ड के ऊपर, देन अगेन यू कैन रीडिजाइन द सर्किट एंड लाइज इट अगेन एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपका डिजाइन साइकिल जो आपने एक रिटर्न वर्क की फॉर्म में तैयार किया है, उसको हम अगर वीएचडीएल लैंग्वेज के अंदर लेके आए तो डिजाइन साइकिल आपका किस तरह से काम करेगा, दैट इज कॉल्ड वीएचडीएल डिजाइन साइकिल। यू कैन गेटिंग द फर्स्ट आइडिया सेम अगेन एंड यू कैन राइट द कोड फॉर दैट पर्टिकुलर आइडिया। आपने उस आइडिया के अकॉर्डिंग एक कोड लिखा, देन उसको सिमुलेशन किया। अगर सिमुलेशन करने के बाद उस पर्टिकुलर एंड, सपोज करो कि आपने एंड गेट का कोड लिखा, उसको आपने रन किया, रन करने के बाद आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर के अंदर 2 टूल्स होते हैं, एक सिमुलेशन और एक सिंथेसाइजर। सिमुलेशन उसकी वेवफॉर्म जनरेट करेगा और सिंथेसाइजर उसका सर्किट जनरेट करेगा। ठीक है। अगर सिमुलेशन करने पर आपकी जो वेवफॉर्म है दैट शुड बी एनालाइज एज पर योर ट्रुथ टेबल। If the result is okay, the circuit will be okay and the circuit is ready to implement on a PLA, PAL or CPLD chip. So now the question is that what is the role of VHDL in your digital system design? Again we have to start from the first step of design an idea. आप एक आइडिया से लेके चलेंगे, उन आइडिया के अंदर आप क्या करोगे कि आपके कितने इनपुट टर्मिनल्स हैं और कितने आउटपुट टर्मिनल्स हैं। ठीक है। आपने स्पेसिफिकेशन को नोट किया, उसके अकॉर्डिंग आपने उन स्पेसिफिकेशन को ध्यान रखते हुए उसका एक कोड लिखा। अगर कोड, उस कोड को आपने जाइलिंग के अंदर जाके रन किया, after simulation you can getting the particular waveform and that you can analyze that particular waveform as per your desired result. If the result is okay, or you can say analysis done by your simulation tool will be okay, then you can getting the desired waveform plus your circuit generation. uh, and the circuit, with the help of your circuit generation, you can implement that particular circuit on your chip, that is simulation block। आपने मॉडल लिया, उसको कंपाइल में रन किया,
रन करने के बाद उसकी वेवफॉर्म को आपने चेक किया, अगर उसकी वेवफॉर्म, सिमुलेशन टूल वेवफॉर्म जनरेट करता है, अगर उसकी वेवफॉर्म ओके नहीं है, उस मॉडल को आप दोबारा फिर कंपाइल करेंगे, लेकिन अगर ओके है तो वेवफॉर्म आपको आउटपुट पे शो कर देगा। तो सिमुलेशन टूल क्या करता है मेनली? सिमुलेशन टूल इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डिजाइन to check its functionality. Various steps and the use of simulation tool are described below. Describe digital system in a visual format. Compile the visual model. Compilation is done to remove the syntax error. After compilation, simulate the design by using simulation tool. Simulation gives output waveform. So that is one of the tool which we can cover in my video with the help of that block diagram, or you can say a flow chart. Then you can analyze the waveform. If the output waveform is not correct, then आप उस कोड को दोबारा फिर मॉडिफाई करेंगे, दोबारा से फिर कंपाइल करेंगे और सिमुलेट करेंगे, अगेन चेक करेंगे, और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी वेवफॉर्म एज पर द रिजल्ट ओके नहीं आ जाती. Next come with your synthesis tool. Synthesis tool, as we know, for generation of a circuit, or you can say netlist. Netlist stand for your gates, यानी कि गेट टाइप का सर्किट यहाँ जनरेट होगा. तो उस सर्किट को जनरेट करने के लिए सिंथेसिस टूल की इनपुट क्या होंगी? पहले वही सेम उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन होगी, इट मीन्स आइडिया होगा, उसका कोड होगा, और उस कोड के अंदर हमने एरिया और स्पीड को भी क्या रखा होगा, ध्यान में रखा होगा. इन तीनों चीज़ों को हम उस कोड के अंदर डाल देंगे. इनमें जो भी प्रोग्राम आप राइट करोगे, उस प्रोग्राम को राइट करते वक्त सिंथेसिस टूल जो है वो इन तीनों से इंफॉर्मेशन लेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड जो सर्किट होगा वो आपका आउटपुट पे क्या करेगा, जनरेट करेगा. अगर वो सर्किट ओके है तो उसको हम आगे पीएलए पाल या फिर सीपीएलडी चिप के ऊपर क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे. तो उसने क्या कहा है, सिंथेसिस क्रिएट्स अ डिजाइन that implement the required functionality and makes the designer constraints in speed, area, and power. Once the VHDL model is simulated, then it passes the synthesis tool, and the synthesis tool reads the VHDL description. If no syntax or synthesis error exists, then the synthesizer produces an output netlist for the target technology. Target technology means the technology like chip, PAL, PLA, FPGA, CPLD, etc. So the input of simulation synthesis tool are HDL description, device selection, and information about the design priority. And the output क्या आएगी, gate level netlist in EDI, electronic design intermediate format. So at the time of synthesis we have mentioned the target technology. It means जब synthesis ने कोई सर्किट बनाया तो सर्किट आगे हमने इम्प्लीमेंट करना होता है. तो इम्प्लीमेंट किसके ऊपर करेंगे हम, या तो पीएलए पे, या फिर पाल पे, या फिर एफपीजीए पे. तो जब हम वो पीएलए पाल एफपीजी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट शुड बी रिमेंबर, दैट इज एरिया वर्सेस स्पीड. तो इतना ध्यान में रखना है कि ये जो एरिया और स्पीड का जो कंसेप्ट है वो क्या होना चाहिए, एरिया कम से कम और स्पीड क्या होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए. इट मीन जब हम उस पर्टिकुलर सर्किट को किसी चिप के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, बर्न करेंगे, तो आपको एरिया और स्पीड को बड़े एक्यूरेटली ध्यान में रख के उसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सर्किट के ऊपर क्या कर देना है, डिजाइन कर देना है. तो आगे क्या होगा कि जब आपका वो सर्किट इंप्लीमेंट हो जाता है, नेक्स्ट टूल इज कॉल्ड योर प्लेस एंड राउट टूल. तो जो गेट लेवल की लिस्ट होगी प्लस योर टाइमिंग जो होंगे वो हम एक प्लेस एंड राउट टूल को दे देंगे. तो वो जो डिवाइस, जैसे सपोज करो कि आपने एक पीएलए की चिप ली, उस पीएलए की चिप के ऊपर मान लो एक डिवाइस कंपोनेंट यहाँ है और एक कंपोनेंट यहाँ है, तो उन दोनों के बीच में जो प्लेस होगा, प्लेस एंड राउट टूल क्या करेगा, वो आपको एक पाथ प्रोवाइड करेगा ऑन ए चिप के ऊपर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर. तो इस तरह से टोटली जो डिवाइस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा. So the place and route tool, input to place and route tool is netlist. Netlist होगी आपकी. Then format and timing constraints होंगे. As in my flowchart, netlist plus timing constraint. Place and route tool places each permitted from the netlist to appropriate location on a target technology. Place and route tool connects the primitives according to netlist. Output of the place and route tool is data file which is used to implement the chip.
So in my that lecture, we can clear the concept of your what do you mean by VHDL, its history and its design cycle, hardware design construction and hardware simulation and synthesis. तो as per the exam point of view आपको किस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि आपने आपने लाइक जैसे मान लो एक सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय VHDL, और या फिर हाउ द डिजाइन साइकिल शुड बी प्रिपेयर बिफोर कम द कंसेप्ट ऑफ योर VHDL, या आपके डिजाइन साइकिल ने अगर आप VHDL डिजाइन साइकिल की बात करो तो उस डिजाइन साइकिल के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस आई आपकी, ठीक है। यानी कि उसके बाद मेन जो आता है वो टॉपिक दैट इज कॉल्ड योर सिमुलेशन और योर सिंथेसिस, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेशन और यू कैन से व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस इन दैट पर्टिकुलर VHDL लैंग्वेज। तो मैंने आपको अपनी तरफ से बड़े अच्छे से कुछ कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आपने क्या किया है कि सिंपली एक चीज ध्यान में रखनी है, जो VHDL है वो पूरी कोडिंग स्टाइल लैंग्वेज है, तो उस कोड को हम हार्डवेयर लैंग्वेज के थ्रू डिजाइन करते हैं, लेकिन उस कोड को लिखने के कुछ स्टाइल्स हैं। तो जो आपका सिक्वेंशियल लैंग्वेज है वो आपका बिहेवियर के अंदर आता है, कॉन्करेंट जो है वो आपका डाटा फ्लो के अंदर आता है, और जो नेटलिस्ट है वो आपका स्ट्रक्चरल के अंदर आता है। तो हम इसके अंदर 3 मोल्डिंग स्टाइल यूज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है जी। लेकिन रिजल्ट सभी का क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलता है, मोर एक्यूरेट मिलता है, फ्लेक्सिबल मिलता है, विद मिनिमम डिले मिलता है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर मोल्डिंग स्टाइल यूज इन योर एप्लीकेशन। तो सबसे जो अच्छा माना जाता है वो आपका बिहेवियर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंशियल लैंग्वेज यूज होती है। इट मीन जो भी स्टेटमेंट यूज होगी प्रोग्रामिंग के अंदर, दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन ए सीक्वेंस मैनर, so that's why that result is more accurate as compared to your data flow plus your structure style molding. So that result will helpful to create a design circuit, at that design of logic circuit will helpful for implement on a PLA PAL or you can say CPLD chip, ठीक है। तो आपने कुछ मैं फिर दोबारा थोड़ा सा रिव्यू कर रही हूँ टोटली वीडियो को, हिस्ट्री आपने स्टडी की कि कैसे आइडिया आया आपका, उसके बाद आपने डिजाइन साइकिल स्टडी किया कि कैसे अगर आपको कोई सर्किट जनरेट करना हो विद द हेल्प ऑफ योर रिटन वर्क्स और यू कैन से नोटबुक और राइट एनी एग्जाम्स, तो आप उस चीज को कैसे एनालाइज करें किसी प्रोडक्ट को बेचना हो मार्केट के अंदर। लेकिन उसके अंदर आपने कुछ मॉडिफिकेशन की तो उसको आपने VHDL के अंदर चेंज किया उसी डिजाइन साइकिल को। देन आपने सिमुलेशन टूल के बारे में डिटेल में पढ़ा और सिंथेसिस टूल के बारे में डिटेल में पढ़ा, और लास्ट वन इज कॉल्ड योर प्लेस एंड राउट टूल, ठीक है जी। तो आप प्लीज इसको एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो।